we had a couple of very good discussions here. So this is the last session of our today's program. So I thank both of you for joining us. You had been there throughout the discussion. So how did you find the topics we covered? Like we are here to talk about rising Arunachal, rising Itanagar. So you both being part of a political organization and civil society, how the progress is being taking place? कैसे हो रहा है सब कुछ सर? सबको धन्यवाद. From very beginning I have been here. Yes. I have been listening all your guests, especially discussing on Itanagar, rising Itanagar. Itanagar, I would like to say, Arunachal is rising actually. Not only Itanagar, entire Arunachal is rising. No doubt about that. Yes, बहुत yes. बहुत कुछ किया गया है, लेकिन और भी कुछ करना है. ईटानगर में, as DC has said, मेयर खासकर बोला है, बहुत कुछ करने का बाकी है. हाँ, as per situation, as per planning, बहुत कुछ हम लोग को मेट्रोपॉलिटन चेंज होने के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी चेंज होने के लिए, पॉपुलेशन डे बाय डे इन्फ्लेक्स हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग को तो इश्यूज तो रेज हुआ है, चाहिए. काफी इश्यूज रेज हुआ है. For the betterment of Itanagar, there was an issue of garbage dumping raised by one of our panelists, one of our guests over here. There's the issue of population influx. There's certain issues, so we need to tackle all those issues, isn't it? हम लोग को ईटानगर के लिए जैसे सिविक एम्यूनिटीज हम लोग को ज्यादा और स्ट्रेस करना पड़ेगा. लाइक अभी जैसे हमने बोला है पार्किंग लॉट है कि नहीं, और अपना बिजली का, पानी का सप्लाई, थोड़ा सिविक एम्यूनिटीज लोगों के लिए बेहतर करना पड़ेगा. इसके अलावा और बहुत है कुछ करने के. I'll come back to you, sir. I'll come back to you. मैं फिरोज साहब आपके पास जाना चाहूँगा. You being a leader of an organization that deals with road and transport. So we are here to talk about rising Arunachal, rising Itanagar. At the same time, we are here to ensure the roads of Itanagar, the roads of Arunachal are safe and secured. क्या कहना चाहेंगे आप इस दिशा में? First of all, thank you News 18 for giving us this opportunity. And moreover, I am not from a political thing. We are a welfare. I've introduced you. In fact, you know, okay, so we are into welfare of the drivers and its families. So regarding, if you ask me the specific question, then the roads are getting better. I cannot say anything bad about it because I have seen changes in past 15 years. Before 15 years, it was all almost same. And talking about Itanagar or entire state? Entire Arunachal, it's been changing because before we used to, transport things which used to for construction materials and all in small vehicles. Now this 12-wheelers, 16-wheelers, big trucks are able to reach some of the destinations which were not possible few years back. So that directly helps in faster development. Because पहले ऐसे था कि छोटा गाड़ी ले जाता था, टाइम भी जाता था, and used to, more investment was there in that. अभी investment भी short हो गया because of good road. और जितने यहाँ पे कोई भी contractors है, यहाँ पे कोई अपना घर. Road is the key to success. Roads are the key to success. But you are constructing roads, or central agencies like BRO and other agencies are constructing roads on top of Himalaya, which is very economically sensitive. So, as a leader of a civil society organization which deals with roads and transport, do you sensitize contractors and other people to build roads in such a way that Himalaya remains intact? Yes. Recently we were in Tawang, where the Chief Minister's mom had passed away. So in that there were few leaders who were discussing about there are too many turns which is not needed actually. And it becomes difficult in a hilly terrain. When you get a heavy load of truck and you're getting instant turns, it makes difficult and dangerous too. So they asked us if you can approach the BRO, which is, I think the constructing agency is BRO for Tawang. They are in Tejpur. So we have given an application to see any possibilities that if
few stretches can be straightened up by cutting a box cutting or maybe a tunnel or something like that, which will ease transportation, which will also reduce accidents, and maybe it will mostly it will take lesser time to reach the place. That adds to less fuel used, less time used for transportation, and construction will have more time. So we did request the BRO, and maybe we'll have representative again going to the I think the regional offices in Tejpur. So we'll be You're talking about cutting the hill, right? Cutting the hill and making the through road a passage through, straight. like box cutting or a tunnel, or just making the road straight, which is possible in many places, which is not done. Yeah, you're Like- talking about making the roads safe for the commuters And short. and short. Also, I was talking about the environmental concern anyway. Okay. Environmental Okay. concern, sensitivity of the region, of the Himalaya. Anyway, I'll come to you, sir. So you being part of an organization, Bharatiya Janata Party, which is in power in the state as well as at the center. So how do you differentiate, how do you compare the development of the previous government with the present government? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 2014 से हमारा देश में सरकार आया, और अरुणाचल प्रदेश 16 दिसंबर के बाद अपना बीजेपी पेमा खांडू का नेतृत्व में बहुत ही मजबूत सरकार आज भी है, और ये बियॉन्ड 29 हम लोग ये पेमा खांडू रहेंगे। तो आप मानते हैं तो- बिल्कुल बदल जाएगा अरुणाचल? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पेमा खांडू बियॉन्ड 29 रहेंगे, और इस फेज पे ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक डेवलपमेंट चेंज हो रहा है। आप सोच के देखिए, 10 साल पहले ईटानगर सिर्फ नहीं है, पूरा अरुणाचल प्रदेश। मैं इस लाइन में इसमें मैं आपको एडिशन, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा टीम का एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूं। इसलिए इनिशियली मैंने बोला है, राइजिंग ईटानगर सिर्फ नहीं है, अरुणाचल इज प्रैक्टिकली राइजिंग। मैं कैसे उसको साबित कर दूंगा आपको। मैंने सीमा यात्रा किया, ऑल इंडो तिब्बत बॉर्डर को, किबीतो काहो से लेके किंजीमिनी आपका जिमीतांग तक, ऑल इंडो तिब्बत बॉर्डर मोर देन 1400 किलोमीटर्स रेंज है। इसको मैंने 6 महीना लगा, एवरी कब 2022 टू 23 6 महीने मुझे लगा। तो हर बॉर्डर में हमारा इंडियन आर्मी को इंटरेक्शन लिया, आईटीबीपी को इंटरेक्शन लिया, हर विलेज में किया, हर फर्स्ट विलेज, आज का तारीख में फर्स्ट विलेज है, उस टाइम में वाइब्रेंट विलेज हमने प्रचार किया। वाइब्रेंट विलेज के लिए वी वेयर द इनिशियल, हम लोग हर बॉर्डर में प्रचार किया कि देश में रिवर्स माइग्रेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लाने जा रहा है इंडियन पार्लियामेंट में, रिवर्स माइग्रेशन। आज का तारीख में अरुणाचल प्रदेश में 560 वाइब्रेंट विलेज हमारा यहाँ सैंक्शन हुआ। 560 vibrant Yes, villages. इसके and बारे में more हम than लोगों ने 4,000 crores सैंक्शन हुआ। invested. That is a very good project. It should Yes, be sir, appreciated. sir, But reverse migration ईटानगर छोड़ के लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं, क्योंकि जो अभी employability अभी आपको हम बता रहा हूँ, हमने देखा 2022 का नवंबर से शुरू करके अप्रैल 23 में खत्म किया हमने सीमा यात्रा के नाम में। तो इसमें प्रैक्टिकली देखा है कि हर बॉर्डर सीमा तक, इंडो तिब्बत बॉर्डर तक पहले कुछ नहीं था, अभी पूरा रास्ता पहुंचा है। ये भी पेमा खांडू का नेतृत्व का टाइम में, कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए। और हमारा देश में गांव कैसा है? गांव Border villages तक कैसा रास्ता पहुंच गया। है? इंफ्रास्ट्रक्चर आज का तारीख में आप ले सकता है, हर जगह में नेटवर्क अवेलेबल है, इंटरनेट हाँ, इंटरनेट एंड मतलब जो भी है मोबाइल का नेटवर्क अवेलेबल है आज का तारीख में। तो हमने सीमा यात्रा किया, और एक नेशनल चैनल तवांग सेक्टर में मैंने लेके गया, सुदर्शन चैनल, ओके इसको लेके गया, और आज का तारीख में अरुणाचल प्रदेश प्रैक्टिकली रियली राइजिंग। जी पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट विलेज के बारे में बात किया था, एंड दिस बिकेम ए नेशनल न्यूज, फर्स्ट विलेज। दिस इनिशिएटिव हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, बट देन द पॉइंट इज वेदर पीपल आर माइग्रेटिंग टू देयर होम विलेज और नॉट, बिकॉज वहां पे क्या काम करेंगे, जॉब मिलेगा कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात है। आई एम जस्ट गिविंग माई ऑब्जर्वेशन।
बॉर्डर के रास्ते के बारे में बात हो रही है, तो आपका क्या कहना है? प्रोबेबली दिस शुड बी माय 3-4 मिनट ही बाकी होगा। बॉर्डर के रास्ते, बिकॉज अरुणाचल इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, स्ट्रेटेजिकली पोजिशन, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग मच मोर इम्पोर्टेंस, ऑल वेदर मोटरेबल रोड टू ऑल बॉर्डर विलेजेस एज ही सेड। तो आपका क्या कहना है, रास्ते बॉर्डर एरिया में कैसा है? पहले तो मैं नितिन गडकरी जी का फैन हूँ। आई एम नॉट ए पार्टी लवर नहीं हूँ, लेकिन इंडिविजुअल लवर तो हूँ। जैसे नितिन गडकरी जी ने काफी रोड में ध्यान दिया है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी अभी जो भी हमारे अरुणाचल बॉर्डर के सीमा से लगा हुआ है उस पार्ट को इतना मोटरेबल कर दिया है ताकि जवानों के साथ साथ हम जो वहाँ बसे हुए हमारे वहाँ निवासी उनको भी फायदा मिले। अभी जैसे कि हम नथुला पास शायद अभी मर्सिडीज से भी पहुंच पाएंगे कि उसको रोड को इन्होंने इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि बॉर्डर एरिया में वो आर्मी को भी, जो हमारे फोर्सेस है उनको भी काम आ जाएगा। और हमारे जो आजकल आराम से तेजपुर से हम लोग अपना गाड़ी ड्राइव करके तवांग पहुंच सकते जी हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। सेला टनल होने के बाद तेजपुर से शायद कितना टाइम लगेगा तवांग तक? तेजपुर टू तवांग 6 घंटे में पहुंच स्ट्रेट ड्राइव इट विल टेक 5 hours एंड इफ यू टेक ए ब्रेक 6 hours तक आप पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट ड्राइव और मे बी सम एडवेंचरस ड्राइविंग 4.5 and 5 hours। ओके जी। सो मैं इसी के साथ साथ मैं काफी आपके क्वेश्चंस लोग सुन रहे था, तो एज ए ड्रीमर यूथ, मैं एक यूथ भी हूँ, तो मुझे काफी सारा चीज, जैसे अभी सर भी है तो शायद वो सरकार तक ये सब पहुंचा देंगे। जैसे विलेज में वापस जाने के लिए, जैसे आप कह रहे थे कैसे कमाएंगे कैसे, तो हमारे यहाँ हॉर्टी एग्री का तो बहुत स्कोप है और हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली और मे बी इट्स इन प्लान्ड वे, मतलब प्लान हो रहा है उसके बारे में कि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, मार्केट की कमी है। फार्मर्स तो उगा रहे हैं लेकिन एक सर्टेन मार्केट नहीं मिल रहा है उसको, तो कोई पैचेस में बेच रहे हैं, कोई कम बेच रहा है, तो सही वैल्यू भी नहीं मिल रहा है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इफ दे कैन क्रिएट ए मार्केट, एक हब या कोल्ड स्टोरेज ऐसे कुछ टाइप का बनाए जहाँ फार्मर्स अपना प्रोड्यूस रख सके। उनको चिंता ना हो कि हम उगा ले लेकिन लेगा कौन, और हर किसी के बस में नहीं है कि मार्केट ढूंढ के बैठे। उगाना सब चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, अगर इस तरह से और थोड़ी थोड़ी मदद हो जाए। विद दिस नोट, फार्मर्स, आज के यूथ फार्मिंग करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक मार्केट, एक बाजार चाहिए, कहाँ बेचेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके द्वारा ये मैसेज सरकार तक जाए, सरकार इस बात को देखे, इनिशिएटिव ले। एक मार्केट की बात की आपने, एमएसपी भी चाहिए और उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, जो प्रोडक्ट मई में हो वो दिसंबर में बेच सके। फॉर दैट वी नीड कोल्ड स्टोरेज। विद दिस नोट हम लोग खत्म कर रहे हैं इस पैनल डिस्कशन को। शायद वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।